أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک عمل اور کثرت سے بھلائی اور آخری عشرے میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کرنے کا بیان۔ دیکھو الحمدللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں کیا کیا کیسا کرنا اور نیک عمل کیسا کرنا اور کثرت سے بھلائی کیسا کرنا، یہ حدیث سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سکی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، پہلے بھی سب سے زیادہ سکی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ تو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آ کر دور قرآن کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت زیادہ سے زیادہ ہوتی، اور پہلے وہ سکی تھے، ابھی ان سے ملاقات ہونے ٹائم پر اور سخاوت میں ابھی زیادہ بڑھ جاتا۔ اور جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے۔ کون؟ دیکھو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رمضان کے ہر رات میں آپ جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ اسی لیے دورہ قرآن زیادہ سے زیادہ کیوں کرتی ہیں رمضان کے مہینے میں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں دورہ قرآن زیادہ سے زیادہ اس لیے کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جبرائیل علیہ السلام سے یہ دورہ قرآن پہلے ہر رات میں ہوتی تھی، اسی لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن ایک دوسرے سے پڑھنا، سنانا، ایسا کرنا چاہیے۔ پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے بھلائی میں تیز ہوا، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، یعنی دورہ قرآن کرتی، یعنی ایسا کرنے سے ابھی زیادہ تیزی ہوا تھا انہوں میں، اسے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے کہ جب اب پہلے ہی اتنا سکی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بھی ابھی آپ جبرائیل علیہ السلام سے جب بھی رات میں ملتے تھے، اب پھر انہوں ابھی زیادہ سخاوت کرنے میں ابھی زیادہ کوشش کرتے تھے۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں رمضان مبارک میں دو کاموں کے کثرت اور انتہائی سے کرنے کا بیان ہے۔ دو کام کیا ہے؟ کثرت اور انتہائی سے کرنا، یعنی ضروری اسے کرنا، کثرت زیادہ سے زیادہ کرنے کا بیان ہے۔ ایک فائز و سخاوت، یعنی کیا ہے؟ ایک سخاوت کا مظاہرہ کرنا، یعنی سخاوت کا مظاہرہ کرنا، تاکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکال سکے۔ یعنی سخاوت کا یہ بھی ایک موقع ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ یہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے اپنا وقت نکالے، اور اپنے دنیاوی مشغولوں میں کمی کر لے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارا دن کیا کرنا، دن ہو رات ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں ہمیں گزارنا چاہیے، اور دنیا کی مشغولوں کے جو بھی کام ہمیں مشغول ہوتے رہے ان میں انہیں کو تھوڑا کم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ ہے مبارک کا مہینہ، اس میں کتنی بھی نیکیاں کرو، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا اور عبادت کرنا، اور بہت سے اس میں بھلائی ہے۔
और दूसरा दूसरा एक काम ये है, यानी नेकी की इबादत करना और ये महीने में ज्यादा वक्त इबादत के लिए देना और दुनिया के लिए कमी करना। दूसरी बात क्या है, कुरान करीम का दौरा और मदरसा, यानी कुरान करीम का दौरा करना, यानी एक दूसरे को कुरान की मंजिलें सुनाना। एक दूसरे क्या है, कुरान की मंजिलें सुनाना, यानी कुरान पढ़कर सुनाना, यानी उसका तर्जुमा सुनाना, ऐसा ऐसा करना। जैसा कुरान करीम करीम के दो हाफिजा हाफिजा एक दूसरे को अपना अमुखता सुनाए, यानी एक दो हाफिज मसलन दो हाफिज रहे, उन्हें एक दूसरे को सुनाने की कोशिश ऐसा करते रहना, यानी जो भी जिसको भी मालूम है तर्जुमा तफसीर मालूम है, वो दूसरों को सुनाने की कोशिश करते रहना। क्योंकि ऐसे सुनने से, उसका तर्जुमा मालूम होने से, उसकी तफसीर मालूम होने से दूसरों को भी उस पर शौक पैदा होता है। यानी अल्लाह का कलाम ऐसा है, अल्लाह ताला कैसे कैसे कुरान में खोल खोल कर, यानी किस्सों के जरिए से बता को है, यानी हर नबी का किस्सा हमको ज़ाहिर होकर, यानी जो भी करना, जो भी नहीं करना, जो भी हराम है, हलाल है, सब भी कुरान में अल्लाह ताला बताकर है। क्योंकि कुरान करीम और रमज़ान मुबारक का यहम निहायत गहरा ताल्लुक है। रमज़ान मुबारक और कुरान का यहम इसका ताल्लुक गहरा ताल्लुक किस लिए है? क्योंकि एक ये कि रमज़ान में कुरान नाज़िल हुआ। दूसरा ये कि हर रात में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान का दौरा करते थे। इसीलिए हमें बहुत से वक़्त इसमें क्या करना, अल्लाह की इबादत में गुज़ारना, नंबर 1 अल्लाह की इबादत में गुज़ारना और दीनी कामों को कम कर देना। नंबर 2 ये कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कुरान के दौरे में गुज़ारना, यानी कुरान पढ़ने में, कुरान सुनाने में, इसमें गुज़ारना बहुत है, बेहतरीन है। यानी कुरान का ताल्लुक रमज़ान का बहुत अहम ताल्लुक है इन दोनों का, इसी इसी वजह से। और एक हदीस से क्या मालूम पड़ता, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे बेदारी फरमाते और अपने घर वालों को भी बेदार करते और इबादत के लिए कमर कस लेते। यानी कब जब आखिरी अशरा आया था, यानी हर रात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या थी, नमाज तहज्जुद उन पर फर्ज थी, यानी बाकी लोगों पर ये सुन्नत है, सुन्नत नहीं, बस वो पढ़ भी सकते हैं या नहीं पढ़ भी सकते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज है, उन्होंने हर हर रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थी। ऐसा कर कर अपने अहल को, अपने औलाद को और अपनी बीवियों को भी ऐसा जगाते रहे और सहाबा भी उनके साथ में तहज्जुद पढ़ते थी। इसमें क्या है, और आखिरी अशर में आखिरी अशरा 10 दिन, रमज़ान के 10 दिन, वो 10 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी इबादत करने के लिए उनको नींद से बेदार करते थे। इस हदीस से क्या फ़ायदा है? यानी वैसे ही तो पूरा रमज़ान ही नेकियों का मौसम है। पूरा रमज़ान ही नेकियों का मौसम है। ने ने पूरा रमज़ान ही नेकियों का मौसम, बहार और इबादत व इताअत का खुसूसी महीना है। ये क्या है, पूरा रमज़ान भी, पहला रमज़ान से लेकर लास्ट 30 रोज़े तक में ये बहुत यानी खुसूसी महीना है। इसमें इबादत करना, यानी नेकियां बढ़ चढ़कर करना, यानी पहले करने से इसमें करने से सवाब ज़्यादा हुआ था। यानी पहले हमें फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से फ़र्ज़ नमाज़ का सवाब मिलता है, यानी रमज़ान में पढ़ने से उसे अल्लाह ताला उसका सवाब बढ़ा चढ़कर देने वाला है। लेकिन उसका आखिरी अशरा तो उसका मौसम इबादत का तकाज़ा उरूज है। उरूज का मतलब क्या है? चढ़ना, चढ़ना है, यानी ज़्यादा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में इब्तिदा में इन 10 दिनों और 10 रातों में तो बिलखुसूस खू खूब मेहनत और जज़ जज़्ब-व-ज़हद जज़्ब-व-जहद
करके अपने रब को राज़ी करने की और उसी तरह लैलतुल कदर की फ़ज़ीलत हासिल करने की सही करनी चाहिए। इसमें क्या है, हमें क्या करना, ये सभी किसी लिए करते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा करना, अपने अल्लाह को राज़ी करना, यानी अपने रब को राज़ी करना, यानी लैलतुल कदर यानी 10 वो 10 खुसूसी रातों में भी आ सकती, या पहले भी आ सकती, या अल्लाहु आलम। यानी इसीलिए वो 10 रातों में भी आती कर कर बहुत से यानी मेहनत करते थे, यानी रात में जाकर नमाज़ पढ़ना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यानी मेहनत करते थे 10 दिन में। इन 10 दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ करने का भी खुसूसी एहतमाम फरमाते थे। एतिकाफ़ क्या है? घर में नहीं सका, तो मस्जिद में ही बैठ जाना। कुरान पढ़ते, कुरान सुनते और लोगों को बताते, कुरान के बारे में बताते, इसी तरह एतिकाफ़ बैठना यानी घर में नहीं आना, यानी बस सिर्फ़ मस्जिद में ही रह जाना। इसे एतिकाफ़ कहते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि लैलतुल कद्र हमारे सबके नसीब में अल्लाह ताला उसे आने को लिख दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी बढ़-चढ़ कर उसमें इबादत करने के लिए अल्लाह ताला मौका अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान ही इतने खैर और बरकत का महीना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना, यानी अपने गुनाहों से माफ़ी माँगना, यानी ये खैर और बरकत का महीना है, यानी बरकत भी तलब करना, यानी आखिरी अशरे में ऐसा भी ये होता कि अल्लाह ताला जो भी यानी साल भर जो भी होने जाता यानी होता, उसको भी फरिश्तों के हाथ में, यानी अपनी जो भी हमारे तकदीर में होने वाला है, वो फरिश्तों के हाथ में सौंप देते हैं अल्लाह ताला। इसी तरह साल भर में आना, हमें ये भी दुआ करना कि या अल्लाह हमारा साल अच्छा गुजरे, यानी नमाज की हालत में, यानी रोज़े की हालत में, यानी हमारे नेकों के हालत में नेकी का ऐसा गुज़रे। हमें दुआ भी करना चाहिए, सबसे बढ़कर दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। एक-दूसरे की खैर-ख़्वाही करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत सी यानी अहम बात इबादत यानी कुरान पढ़ना, एक-दूसरे के साथ मिलकर कुरान पढ़ना, एक-दूसरे को सुनाना, ये सभी बहुत ही अहम चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमको उनमें शामिल कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना अ अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा आजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसिल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसिल आला। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतल फिरदौसिल आला। अल्लाह ताला हमें जो भी करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, हमारे सब भी उम्मती मोहम्मदिया सबसे अल्लाह राज़ी हो जाए। अल्लाह हर एक को भी अल्लाह इस कुत ये अल्लाह की किताब के लिए उनके दिल खोल दे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने, पढ़ाने, समझने और उस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।